Good morning, students. My name is Rashmin Dabi, teaching the students of 9 to 12 standards of English medium in our Aradhya. Okay, yesterday we had started the lesson, the sound of music. Okay, and in that we are doing the first story of Evelyn Glennie. Now, this video is the second part of it. We had seen that Evelyn Glennie had a gradual loss of hearing. At the age of 8, her mother called out her name, but she did not move. So, first time mother noticed that she was getting deaf. She hid that deafness for some times, but at the age of 11, again it was noticed at the school. So, school headmistress just called her parents and appealed to them to take her to the ENT specialist, and there the specialist doctor found out that her nerve was severely damaged. Now she will require what? Hearing aids, and she should be sent to the school of deaf. So even after this situation, Evelyn Glennie did not give up. On the contrary, she just pursued her interest for music. And it was good that the percussionist, Ron Forbes, yani percussionist word yesterday I told you is used for the musician. So Ron Forbes found in her the talent, the potential of becoming a great musician. And he just asked her not to listen to the music, but he just asked her to experience that. And for that, what did he do? He tuned 2 drums on different notes, okay, or higher notes and lower notes, and then asked her to experience the vibration of the drum. And afterwards, Evelyn made all the great efforts, and now she could experience the drum tuned at the higher notes below her waist and lower notes down her waist. So that way she got it. And I was talking about the lip reading also. She would talk to the people by reading their lips. Okay. Now from there we will continue. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had desired to make music her life. So she was in her teenage years. At the age of 16 only, she toured United Kingdom. Remember, this girl, Evelyn, is from Scotland. She left her Scottish farm and came to London to join that Royal Academy of Music. Okay, and now she toured the entire UK. UK means United Kingdom, that combines 3-4 countries. England, Ireland, Scotland, all those, that is called UK. Okay, so she toured that at the age of 16, and then she decided, after this particular tour, she decided that she wants to make music only as her life goal. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. So she went for the audition. Now in Royal Academy, the people are not simply admitted. For admission, they take audition. And in audition, you see thousands of people are there in a queue. And they will check you from all the angles. And if you are really talented, then only they will take you. For that, different types of tests are conducted. And it is said that she scored one of the highest marks in the history of the Academy, audition mein. Okay. She gradually moved from orchestral work to solo performances. Up till now, she was playing drums and other musical instruments in orchestra. So, orchestra mein students kya hota hai? When you are playing in orchestra, even if you make mistakes, the other musical instruments are also being played. तो तुम्हारी गलती छुप जाती है. बराबर तबले वाले ने कुछ गलत बजाया, तो दूसरे जो आवाज़ आता है वाजिंत्रों का, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसके आवाज़ में ये गलती छुप जाती है. बट व्हेन यू गिव ओनली सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मीन्स you are coming on the stage with only one musical instrument and you perform.
देयर योर मिस्टेक्स आर इजीली नोटिसेबल। तो ये ऑर्केस्ट्रा से क्या बन गई, ऑर्केस्ट्रल प्रेयर से वो क्या बन गई, सोलोइस्ट बन गई। नाउ शी स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेस। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स वेयर इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। 3 साल के कोर्स में तो उसने ज़्यादातर सभी बड़े बड़े अवार्ड्स उसने ही पा लिए थे। नाउ दैट इज व्हाट दैट रिक्वायर्स अ ह्यूज हैंड, that requires a huge clapping, because she is already handicapped, deaf, and then also she gets most of the awards. Okay, and for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievements. कोई दूसरा बच्चा होगा उसको इतने कम उम्र में इतने सारे अवार्ड्स मिल जाए तो वो क्या है, अपनी वाहवाही हो वैसा वो सोचेगा कि कोई हीरोइक काम किया इसलिए सब मेरी तारीफ करें, everyone should appreciate me, I deserve to be appreciated. That's what most of the people will feel. But here she does not accept any such hint that she has done any heroic achievement. Okay, if you work hard and know where you are going, you will get there. This was her motto of life. अगर तुम वर्क हार्ड करो और तुम्हें पता है कि किस चीज़ के लिए तुम वर्क हार्ड कर रहे हो तो उस चीज़ तक तुम पहुंचोगे ही। दैट वॉज हर मोटो ऑफ लाइफ। ये उसके जीवन का सूत्र था कि जो चीज़ के लिए तुम वर्क हार्ड कर रहे हो वो तुम्हें पता है कि इसके लिए कर रहा हूँ, तो दैट थिंग विल डेफिनेटली बेयर द रिजल्ट्स, ओके, बेयर द फ्रूट्स। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist. She is master not only in one instrument, she is master in many instruments. Next part of this lesson, if we see about Bismillah Khan. Now Bismillah Khan, India's one of the, we can say, the greatest man of India, one of the greatest men of India who won this Bharat Ratna award, the highest civilian award. For what? To be a master in Shehnai playing. Now he was the master of only one instrument, Shehnai. He made Shehnai very famous in India. उसके जैसी शहनाई कोई बजाता ही नहीं था. But he did not know the other instruments. While here Evelyn, even though she is deaf, she was multi-percussionist. Multi-percussionist यानी she could play many other instruments. And she was the most sought after, okay, sought after multi-percussionist. काफ़ी सारे देश वाले उसको बुलाते थे, उसका टाइम लेते थे कि हमारे यहाँ परफॉर्म करने आओ ये दिन को ऐसे. सो शी हैड टू ऑलवेज लुक एट हर शेड्यूल. अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. देखो ये लाइन बताती है बिस्मिल्लाह खां की मास्टरी सिर्फ शहनाई में है, जबकि एवलिन की मास्टरी बोलते हैं कि अबाउट सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती है. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका शेड्यूल कैसा है? इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत हेक्टिक है. हेक्टिक है यानी शी रिमेन्स ऑल द टाइम बिजी ओनली. आज मानो पाकिस्तान बजा के आई तो कल श्रीलंका जाना है, तो फिर 2 दिन के बाद नेपाल जाना है, फिर उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर ये स्विट्जरलैंड जाना है. ऐसे हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल रहता था. इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. एक तो वो सुन नहीं पाती है पर वो बजाती है तब जबरदस्त बजाती है. वो खुद नहीं सुन पाती है वो क्या बजाती है. ओनली वी पीपल कैन लिसन टू हर म्यूजिक, शी कैन नॉट लिसन टू हर ओन म्यूजिक. सो ऐसे बंदा जो खुद क्या बजाता है उसको ही नहीं पता चलता है, पर फिर भी वो लोगों को चकाचौंध कर देता है. तो इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच. ओके, इट इज इंट्रिगिंग यानी इट इज फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग यानी मंत्रमुग्ध कर दे ऐसा वो बजाती है. खुद तो वो सुन नहीं पाती है फिर भी. ओके, इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. वो म्यूजिशियन बन गई है क्योंकि वो म्यूजिक महसूस करती है. स्टूडेंट्स अपने बॉडी में म्यूजिक महसूस करती है, बराबर. और मैंने उसकी दूसरी टैलेंट बताई थी कि वो क्या है, आवाज़ कैसे पहचानती है, महसूस करके. बट व्हेन शी टॉक्स टू द पीपल, हियर इट इज सेड दैट
2 घंटे हमने उससे डिस्कशन की, 2 घंटे में शी नेवर मिस्ड अ सिंगल वर्ड। हम कुछ बोले हो उसकी समझ में नहीं आया, उसने को सुनाई नहीं दिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज शी वॉज गुड इन लिप रीडिंग। वो सुन नहीं पाती है तो लिप कैसे मूवमेंट करते हैं सामने वाले से, उसके जोर पे वो बताएगी कि ये क्या कहना चाहता है। ओके, सो शी वॉज एक्यूरेट इन दैट। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। उसको ट्रबल कहाँ होती है ये हंस के बताती है कि नॉर्मल क्लीन शेव्ड आदमी है तो उसके लिप कैसे मूवमेंट करेंगे, मूछे पुच्छे नहीं है तो उसके लिप्स कैसे मूवमेंट करेंगे उसको पता चलेगा। पर वो बुशी बियर्ड है, बहुत गहरी दाढ़ी वाला इंसान है तो उसके लिप्स जल्दी मूवमेंट कैसे करते पता नहीं चलता है। इसलिए वो बोलती है कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ और वो लोगों में बुशी बियर्ड्स वाले होते हैं, बड़ी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, तो दे गिव मी ट्रबल बिकॉज आई कैन नॉट रीड देयर लिप्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इसलिए उनसे क्या है ठीक तरह से बातचीत नहीं हो पाती है। ओके, शी लाफ्ड। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। फिर वो सिर्फ लिप्स ही नहीं देखती है, उनका पूरा चेहरा पढ़ती है, तो चेहरे से पता चल जाता है किस भाव से क्या बोल रहा है। ओके, स्पेशली द आईज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट यानी एक्सेंट। ये हम लोग सब इंग्लिश बोलते हैं पर सभी लोगों के इंग्लिश का एक्सेंट अलग अलग होता है। साउथ इंडियन का अलग होता है, नॉर्थ इंडियन का अलग होता है, गुजराती का अलग होता है। तो उनकी जो लोकल भाषा जो बरसों से बोलते हैं वो उसकी छांट थोड़ी ये इंग्लिश बोलते हैं उसमें भी आ ही जाती है स्टूडेंट्स। सो हियर दिस गर्ल इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, सो हर स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश एक्सेंट ऑल्सो इज सीन इन हर इंग्लिश, बट शी स्पीक्स फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली यानी विदाउट एनी मिस्टेक। Her sentences in English are perfect, no grammatical mistake, nothing. Okay, my speech is clear because I could hear till I was 11. ये हमको पहले मैंने बताया था, स्टूडेंट्स आपको बताया था कि उसका हियरिंग लॉस था, क्या था, जन्म से डेफ नहीं थी, वो 8 साल की उम्र में उसका डेफनेस शुरू हुआ और 11th में कंफर्म हो गया कि हाँ, तो ये उसका हियरिंग लॉस था, वो ग्रेजुअल था, तो 11 ईयर्स तक तो वो सुन सकती थी, थोड़ा बहुत भी सुन सकती थी। 11 के बाद उसका कंप्लीट गया, हियरिंग लॉस कंप्लीट गया 11 के बाद। इसलिए वो बोलती है कि मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि 11 ईयर्स तक तो मैं खुद सुन सकती थी। अंडरस्टूड? शी सेज दैट बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। हम लोग जो अच्छी तरह बोलते हैं, सुनते हैं, हमको दूसरी भाषा सीखने में इतनी दिक्कत होती है, ये सुन तो पाती ही नहीं है। देन ऑल्सो शी हैज मास्टर्ड फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ फ्रेंच आई हैव ऑल्सो लर्न स्टूडेंट्स, आई नो फ्रेंच, बट आई टेल यू फ्रेंच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत डिफिकल्ट है। ये इंग्लिश, गुजराती, हिंदी जितनी ईजी नहीं है। सो शी हैज मास्टर्ड दैट लैंग्वेज, उसमें मास्टरी पाई है। एंड शी हैज ऑल्सो मास्टर्ड द बेसिक्स ऑफ जापानीज लैंग्वेज। बेसिक जापानीज लैंग्वेज, बेसिक पूरी मास्टरी नहीं पाई है पर बेसिक जो है उसमें मास्टरी पाई है। सो बोथ आर फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर हर। देन ऑल्सो एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में उसका क्या ख्याल है, वो क्या बोलती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। बराबर, यानी कि उसके बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूजिक है, ऐसा वो बोलती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ओके, एंड माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो म्यूजिक मेरे स्किन में दिखाई देता है, मेरे चिकबोन्स में दिखाई देता है और इवन मेरे हेयर में भी है। ये बहुत सालों पहले एक मूवी आया था जिसका टाइटल था जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। बिजली नाम की जो वो डांसर बताई है वो डांस के बगैर रह ही नहीं सकती। जैसे मछली पानी के बगैर रह नहीं सकती, वैसे ये बिजली जो है वो डांस के बगैर रह नहीं सकती। कुछ ऐसा ही हाल ये इवलिन का है, वो म्यूज़िक के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए वो खुद बताती है कि मेरे पूरे बॉडी में म्यूज़िक समाया हुआ है, बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूज़िक समाया हुआ है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू द फिंगर टिप्स। ओके, तो जब वो जाइलोफोन बजाती है, जाइलोफोन वो पिक्चर दिया है साइड के पेज में,
वो बजाती है तो वो स्टिक से बजाना होता है स्टूडेंट्स। तो वो बोलती है कि इसमें से वाइब्रेशन स्टिक में होके मेरी बॉडी में, फिंगर टिप्स में होके मेरे बॉडी तक जाते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि शी एक्सपीरियंसेस द वाइब्रेशन ऑफ दिस म्यूजिक। ओके, बाय leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. वुडन प्लेटफॉर्म पे वो जाती है तो क्या करती है, शूज निकाल देती है ताकि ड्रम बजाते वक्त जो भी वाइब्रेशन आए वो उसके पैरों से होके उसकी बॉडी में आए, उसको महसूस हो। ओके, now we are moving towards the last part of it. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. तो ऐसा म्यूजिशियन किसी को भी डिलाइट करेगा, किसी को भी आनंद देगा अपने म्यूजिक बजा के। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. ये पूरे साल का बेस्ट सोलोइस्ट प्लेयर कौन बनी थी, ये बनी थी। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैक, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड ने शायद उसकी हियरिंग कैपेसिटी ले ली है पर उसके बदले में उसको ये म्यूजिक बजाने की सॉलिड टैलेंट दी है। ये जेम्स ब्लैक बोलता है। ओके, वो मास्टर परक्यूशनिस्ट है लाइक रॉन फॉब्स। What we hear, she feels far more deeply than any of us. हम जो सुनती है, हम जो सुनते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गहराई में वो सुनती हैं। That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वो अपना म्यूजिक जो बजाती है वो इतना ब्यूटीफुली बजा सकती है क्योंकि वो गहराई से सुनती है, गहराई से महसूस करती है। हमारे जैसा नहीं कि थोड़ा गाना सुना, 4 दिन के बाद वो गाने से पक गए। Understood? Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Workaholic यानी very busy person. काम के बगैर उसको चलता नहीं है, काम चाहिए, हर दफा काम चाहिए, बिजी रहना है। Okay. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Okay. She is the most sought after player students, but then also she gets time to give her performance free of charge in hospitals and prison. तो ये साथ साथ में ऐसा चैरिटी वर्क भी करती है, बराबर। And yeah, she also gives high priority to the classes for young musicians. Young musician जो सीखने आते हैं उनके क्लासेस में भी इनको सिखाने जाती है। And Anne Rochlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. जो इसके जैसे दूसरे डेफ चिल्ड्रन हैं उनके लिए तो ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है कि अगर वो बजा सकती है, वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन सकती है तो हम क्यों नहीं। ओके, दे सी दैट देयर इज सम नोवेयर दे कैन नॉट गो। तो उनको भी उम्मीद मिलती है कि ऐसा कुछ नहीं है जहां वो जा नहीं सकते, उनकी लाइफ अटक नहीं गई है, वो ये पोजीशन में भी कई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. If you look at the sentence, what it means? उसकी उम्र के उससे डबल उम्र के लोगों ने जो नहीं पाया है अभी तक म्यूजिक फील्ड में, वो उसने पाया है, बराबर। उससे उन लोगों से ज़्यादा पाया है जो उसकी डबल एज के लोगों ने भी अभी तक नहीं पाया है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. ये पहले ही मैंने बता दिया, डेफ बच्चों के लिए तो है ही, उसके साथ साथ दूसरे जो अलग अलग प्रकार के हैंडीकैप लोग हैं वो सबके लिए ये इंस्पिरेशन है। ओके, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। देखो, हर एक के दिमाग में ये फीलिंग आएगी, हर एक कोई जो हैंडीकैप है वो जब इवलिन के बारे में जानेगा, इवलिन की लाइफ जानेगा, उसको उसकी क्या है सिद्धियाँ देखेगा, तो उसको सबको यही फीलिंग आएगी कि इफ शी कैन डू व्हाई कांट आई डू, तो आई कैन ऑल्सो डू। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस।
क्योंकि वो हर एक देशों में ऐसे घूमी है, उसको काफ़ी सारे देश वाले बुलाते थे, सब जगह जाके उसने अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिया है। सो शी हैज़ गिवन प्लेजर टू मिलियंस, लाखों लोगों को उसने अपने म्यूजिक से आनंद दिया है। विद दैट स्टूडेंट्स वी कंप्लीट दिस फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टोरी ऑफ द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल टॉक, we will take the lesson second part, that is the Shehnai of Bismillah Khan. Till then the question answers are quite easy. The first question, how old was Evelyn when she went to school to the Royal Academy of Music? 11 year. When was her deafness noticed first, and when was it confirmed? At the age of 8 it was noticed by mother. Mother called her, but she did not move. And in school it was confirmed at the age of 11 when the headmistress called her mother and taken to the specialist confirmed. Okay, and the other questions are detailed questions, but they are easy. You will get the answers from the text only. I hope I have taught you well and you have understood most of the details. So kindly write the answers well in your notebooks and learn them for the upcoming exams. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.